परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज का वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। वचन दोधारी तलवार के समान है, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ कि जो भी भविष्यवाणी आने वाली है प्रभु, इस भविष्यवाणी इनके जीवन में सच होगी, ये मेरा विश्वास है प्रभु। परमेश्वर, मेरे मुंह में तू शब्द डाल प्रभु, मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु, और पवित्र आत्मा तू मेरे द्वारा बात कर प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि अगर कौन सा प्रकटीकरण को किस समय आना चाहिए वो तू मुझे बता प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि जो लोग सुन रहे हैं वचन, उनके कानों को खोल दे प्रभु, उनको वो वचन अंदर लेने के लिए मदद कर प्रभु। उनको मैं एकदम सिंपल वे से ये वचन बता सकूं, और कोई भी व्यक्ति जो एकदम साधारण व्यक्ति है वो भी ये वचन समझ पाए, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा ये व्यक्ति वचन समझ पाए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। वचन क्लैरिटी से आए और परमेश्वर प्रकटीकरण वचन में हो, और परमेश्वर जो तू चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी ये वचन सुनने वाले हैं उन्हें अनुग्रह दे वचन पर चलने के लिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, वचन की शुरुआत हो रही है न्यायियों की पुस्तक 13वां अध्याय, जजेस 13 1 to 14। न्यायियों की पुस्तक 13वां अध्याय 1 से 14। ओके, तो मैं इंग्लिश में पहले पढ़ने वाली हूँ। आप लोग जो हिंदी में हो, इंग्लिश में पहले, फिर मराठी में और फिर हिंदी में। हिंदी के बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी क्या है, ठीक है? चलो, जजेस 13 1 to 14। द बर्थ ऑफ सैमसन। Again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, so the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. Certain man of Zorah named Manoah from the clan of Danites had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering the Israel from the hands of Philistines." Then the woman went to her husband and told him, "A man of God came to me. He looked like an angel of God, very awesome. I didn't ask him where he came from, and he didn't tell me his name. But he said to me, 'You will become pregnant and have a son. Now then, drink no wine or other fermented drink, and do not eat anything unclean, because the boy will be a Nazirite of God from the womb until the day of his death.'" Then Manoah prayed to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I beg you to let the man of God you sent to us come again to teach us how to bring up the boy who is to be born." God heard Manoah, and angel of God came again to the woman while she was out in the field, but her husband Manoah was not with her. The woman hurried to tell her husband, "He is here, the man who appeared to me the other day." Manoah got up and followed his wife. When he came to the man, he said, "Are you the man who talked to my wife?" "I am," he said. So Manoah asked him, "When your words are fulfilled, what is to be the rule that governs the boy's life and work?" The angel of the Lord answered, "Your wife must do all that I have told her. She must not eat anything that comes from grapevine, nor drink any wine or other fermented drink, nor eat anything unclean. She must do everything I have commanded her." ओके, मराठीमध्ये वाच. इस्रायल लोकांनी दुष्ट कृत्य करायला सुरुवात केली आहे असे पुन्हा परमेश्वराच्या लक्षात आले. तेव्हा त्याने 40 वर्ष फिलिस्तीनच्या हातात सत्ता दिली. सरा नगरामध्ये मानोहा नावाचा एक माणूस होता. तो दान वंशातला होता. त्याच्या बायकोला मूलबाळ नव्हते. एकदा परमेश्वराच्या दूताने तिला दर्शन दिलं.
तो तिला म्हणाला, तुला आता गळ्यात मूल झाले नाही, पण आता तू गरोदर राहशील आणि तुला मुलगा होईल. मात्र द्राक्षरस किंवा मद्य पिऊ नको, तसे कोणताही अशुद्ध पदार्थ खाऊ नकोस, कारण तू गर्भवती राहून पुत्राला जन्म देशील. तो परमेश्वराचा असेल. तो नाझीर होईल आणि त्याचे जावळ काढू नको. जन्माला येणाऱ्या अगोदर पासूनच परमेश्वराची त्याच्यावर कृपादृष्टी असेल. फिलिस्तीनच्या पासून तो इस्रायलचे रक्षण करील. तिने आपल्या नवऱ्याला सर्व काही सांगितले. ती म्हणाली, देवाकडून एक माणूस माझ्याकडे आला होता. त्याचे रूप देवाच्या देवदूताप्रमाणे भीती आणि आदर निर्माण करणारे होते. त्याला पाहून मी भयभीत झाले. त्याचा ठाव ठिकाणा मी विचारला नाही. त्याने त्याचे नाव सांगितले नाही. पण तो मला म्हणाला, तुला दिवस राहतील आणि मुलगा होईल. मद्य किंवा द्राक्षरस पिऊ नको, तसे कोणते अशुद्ध अन्न खाऊ नको, कारण हा मुलगा जन्माला यायच्या आधीपासून मरेपर्यंत देवाचा नाझीर असणार आहे. हे ऐकून मनोवाने परमेश्वर प्रार्थना केली. तो म्हणाला, हे परमेश्वरा, त्या दूताला परत आमच्याकडे पाठव. या जन्माला येणाऱ्या मुलाचे संगोपन आम्ही कसे करावे आम्हाला त्याच्याकडून पुन्हा ऐकू दे. परमेश्वराने मनोवाची विनवणी ऐकली. परमेश्वराचा दूत पुन्हा तिच्याकडे आला. ती शेतात बसली होती आणि तिचा नवरा तिच्या जवळ नव्हता. तो पुन्हा आलाय, त्या दिवशी आलेला माणूस आज परत येथे आला आहे असे सांगत ती धावतच नवऱ्याला बोलवायला गेली. मनोवा उठून बायकोच्या मागोमाग गेला. त्या माणसाजवळ आल्यावर त्याला म्हणाला, पूर्वी माझ्या बायकोशी बोलून गेलास तर तूच का? दूत म्हणाला, हो, तो मीच. तेव्हा मनोवा म्हणाला, आपल्या म्हणण्याप्रमाणे घडून येवं. त्या मुलाचा जीवनक्रम कसा असेल, तो काय काय करील, आम्हाला सर्व काही सांग. तेव्हा मनोवाला त्या परमेश्वराचा दूत म्हणाला, तुझ्या बायकोला मी जे सांगितले त्याप्रमाणे तिने वागावे. द्राक्ष वेल्याचा कोणताही भाग तिने खाऊ नये. द्राक्षारस किंवा मद्य पिऊ नये. अशुद्ध अन्नाचे सेवन करू नये. माझ्या आज्ञा कसोशीने पाळाव्यात. ओके, हिंदी में पढ़ रही हूँ. न्यायियों की पुस्तक 13:1-14. यहोवा ने शिमशोन का जन्म. यहोवा ने इज़राइल के लोगों को फिर पाप करते हुए देखा, इसलिए यहोवा ने पलिश्ती लोगों को उन पर 40 वर्ष तक शासन करने दिया. एक व्यक्ति सोरा नगर का निवासी था. उस व्यक्ति का नाम मनोहा था. वह दान के परिवार समूह से था. मनोहा की एक पत्नी थी, किंतु वह कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी. यहोवा का दूत मनोहा की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हो, किंतु तुम गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा. तुम दाखमधु या कोई नशीली पीने की चीज़ न पियो. किसी भी अशुद्ध जानवर को न खाओ. क्यों? क्योंकि तुम सचमुच गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा. वह विशेष रूप से परमेश्वर के प्रति एक विशेष रूप में समर्पित होगा. वह एक नाज़ीर होगा, इसलिए तुम्हें उसके बाल कभी नहीं काटने चाहिए. वह पैदा होने से पहले परमेश्वर का व्यक्ति होगा. वह इज़राइल के लोगों को पलिश्ती लोगों की शक्ति से मुक्त कराएगा. तब वह स्त्री अपने पति के पास गई और जो कुछ हुआ था बताया. उसने कहा, परमेश्वर के पास से एक व्यक्ति मेरे पास आया. वह परमेश्वर के दूत की तरह न्यात होता था. वह बहुत भयानक दिखाई पड़ता था और मैं डर गई थी. मैंने उससे यह नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो. उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, किंतु उसने मुझे कहा, तुम गर्भवती हो और तुम्हें एक पुत्र होगा. कोई दाखमधु या नशीली पीने की चीज़ मत पियो. कोई ऐसा जानवर न खाओ जो अशुद्ध हो, क्योंकि वह लड़का विशेष रूप से परमेश्वर को समर्पित होगा. वह लड़का जन्म के पहले से लेकर मरने के दिन तक परमेश्वर का विशेष व्यक्ति होगा. तब मनोहा ने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू परमेश्वर के व्यक्ति को हम लोगों के पास फिर भेज. हम चाहते हैं कि वह हमें सिखाए कि हम लोगों को यह जन्म लेने वाले बच्चे के साथ हमें क्या करना चाहिए. परमेश्वर ने मनोहा की प्रार्थना सुनी. परमेश्वर का दूत फिर उस स्त्री के पास तब आया जब वह खेत में बैठी थी, किंतु उसका पति मनोहा उसके साथ नहीं था. इसलिए वह स्त्री अपने पति से यह कहने के लिए दौड़ी,
वह व्यक्ति लौटा है। पिछले दिनों जो व्यक्ति मेरे पास आया था वह यहाँ है। मनोआ उठा और अपनी पत्नी के पीछे चला। जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम वह व्यक्ति हो जिसने मेरी पत्नी से बातें की थी? दूत ने कहा, मैं ही हूँ। अतः मनोआ ने कहा, मुझे आशा है कि जो तुम कहते हो वह होगा। यह बताओ कि वह लड़का कैसे जीवन बिताएगा, वह क्या करेगा? यहोवा के दूत ने मनोआ से कहा, तुम्हारी पत्नी को वह सब करना चाहिए जो मैंने उसे करने को कहा है। उसे अंगूर की बेल पर उगी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। उसे दाख मधु या नशीली पीने की चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। उसे किसी ऐसे जानवर को नहीं खाना चाहिए जो अशुद्ध हो। उसे वह सब करना चाहिए जो करने का आदेश मैंने उसे दिया है। हालेलुया, आमीन। अब ये एक स्टोरी क्या है हम देखेंगे। आज एक नया स्टोरी चालू हो रहा है। कितने लोग एक्साइटेड है? शिमशोन, ओके। इंग्लिश में जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं, मैं 5-10 मिनट लेने वाली हूँ वो स्टोरी बताने के लिए। इंग्लिश में जिस कैरेक्टर के बारे में हम सीखने वाले हैं बाइबल में, उस नाम है कैरेक्टर का इंग्लिश में सैमसन, हिंदी में शिमशोन और मराठीमध्ये शिमशोन। मराठी में भी शिमशोन और हिंदी में भी शिमशोन, इंग्लिश में सैमसन। ठीक है, तो मैं एक्चुअली अगर मैंने सैमसन भी बोला तो समझ जाना, शिमशोन बोला तो समझ जाना, दोनों एक ही है। ठीक है, अब भी हो क्या रहा था? हाँ, शमशोन, मराठी मध्ये शमशोन। ठीक है, अब हो क्या रहा था? शिमशोन जो व्यक्ति था कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ठीक है, और उसके जन्म के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, अब उसके जन्म के बारे में जानेंगे और फिर परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, वापस से मैं वचन पढ़ रही हूँ। यहोवा ने इज़राइल के लोगों को फिर पाप करते हुए देखा, इसलिए यहोवा ने पलिश्ती लोगों को उन पर 40 वर्ष तक शासन करने दिया। अभी इज़राइली लोग जो थे, बैकग्राउंड क्या था? इज़राइली लोग जो थे वो अब क्या, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि इज़राइली लोग बाहर आ गए हैं। अब उनको यात्रा करनी थी, ठीक है, यात्रा करनी थी और बाद में वो कनान देश में पहुंचने वाले। आज का जो वचन है, ये लोग ऑलरेडी कनान देश में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे साल हो चुके हैं इनको कनान देश में पहुंच के। ठीक है, पर कनान देश में पहुंचने के बाद इन्होंने पाप करना शुरू किया है। और क्या पाप करते थे? वो अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे भगवानों के पीछे भागते थे और यही परमेश्वर को खटकता था। ठीक है, कौन से परमेश्वर ने उनकी मदद की? यहोवा ने, यीशु ने बाहर उसे निकाला। जब मैं यीशु बोलती हूँ तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। ठीक है, उन्होंने बाहर इनको निकाला और कनान देश में लाया। पर कनान देश में आने के बाद भी इनकी एक गलत आदत होने लगी। ये कई बार बैकग्राउंड क्या होता था, ये लोग अगर इनके यहाँ पे अच्छा राजा है तो वो राजा इन्हें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित करता था, इनकरेज करता था और ये लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे। पर जैसे वो राजा गुजर जाता था और कोई गलत राजा इनके ऊपर राज करता था, इजरायली और लोगों के ऊपर, तो वो गलत राजा क्या करता था? गलत राजा वेदी बनाता था मूर्ति पूजा के लिए। ओके, दूसरे भगवानों के लिए मूर्ति बनाता था और उनके लिए वेदी चढ़ाता था। और ये लोग क्या करते थे? वो राजा जो बोलेगा ये चाके उस वेदी पर बलिदान देते थे और वो मूर्तियों के सामने झुकते थे। तो ये परमेश्वर को पसंद है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे किसके हैं? परमेश्वर ने इनको निकाला है कि नहीं? और ऐसा ही होता रहा है इजराइल के साथ। इजराइल के ऊपर एक अच्छा राजा आता था तो वो परमेश्वर के पीछे चलते थे। जब कोई बुरा राजा आता था तो वो बुरा राजा क्या करता था? वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलने वाला होता था, तो वो क्या करता था? मूर्तियां स्थापित करता था। और वो क्या करता था? मूर्तियों के सामने झुको। अब ये झुकते थे। अब झुकने के बाद क्या होता था? जब ये दूसरे मूर्तियों के सामने जब ये झुकते थे तो परमेश्वर को आता था गुस्सा। और वो गुस्सा, वो क्रोध कैसे निकलता था? वो उनके इजरायली लोगों के दुश्मनों को
लड़ाई करने के लिए न्योता देता था। इजराइल के दुश्मन कौन थे? फिलिस्ती लोग, और फिलिस्ती लोग आके इजराइल को नष्ट करते थे, ओके, बर्बाद करते थे। जब फिलिस्ती लोग इजरायली लोगों के ऊपर बर्बादी करना शुरू करते थे, वो उनके लोगों को मारते थे, वो इनका खेत चोरी करते थे, इनके खेत में जो उगा हुआ होता था अन्न वो भी लेकर जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। जब ऐसा होने लगता था कि फिलिस्ती लोग इनके ऊपर चढ़ रहे, हावी हो रहे, तो ये अपने परमेश्वर को पुकारते थे, ओके। तब ये परमेश्वर की पुकारते थे, परमेश्वर तू कहाँ है, तू कहाँ है। और फिर परमेश्वर वापस उनके ऊपर प्रेम करता था, वापस उनको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई अपना भविष्यवक्ता भेजता था, या तो फिर कोई राजा भेजता था जो इनको, या कोई लीडर भेजता था जो इनको पलिश्ती लोगों के दुखों से, सताव से आज़ाद करे। समझ में आ रहा है? और यही सीजन चलता था। वो अच्छा राजा आया, इनको निकाला, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वापस एक गलत राजा आया, वापस पाप करना शुरू, वापस पाप करेंगे, वापस परमेश्वर उनके दुश्मनों को इस्तेमाल करेगा इनके ऊपर अटैक करने के लिए। जब दुश्मन अटैक करेंगे, ये रोएंगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर वापस इनको प्रेम करेगा, वापस अच्छा लीडर भेजेगा और इनको छुड़ाएगा। तो अब हम जो स्टार्टिंग का वर्स देख रहे हैं उससे आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। चलो फटाफट, एक बार स्टोरी समझ में आ गई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। वापस न्यायों की पुस्तक 13 पहला वचन, यहोवा ने इजराइल के लोगों को फिर पाप करते हुए देखा। तो वो कौन सा पाप कर रहे थे? मूर्ति पूजा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहोवा ने पलिश्ती लोगों को उन पर 40 वर्ष तक शासन करने भेजा। समझ में आ रहा है? पाप किया ना, मेरी याद नहीं आई ना, तो अब मैं तेरे दुश्मनों को तेरे ऊपर चढ़ाऊंगा, फिर तू मेरे पास रोएगा और फिर मैं आके तुझे लूंगा करीब। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति, अब क्या हो रहा था, फिलिस्ती लोग 40 वर्ष तक इनके ऊपर इतने जुल्म ढा रहे थे, इतना सता रहे थे इनको, अब ये रोने लगे थे, ठीक है। अब परमेश्वर है, अपने बच्चों को रोते हुए तो देख नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर क्या बोलेगा, मैं अपने किसी लीडर को भेज रहा हूँ, अब मेरा लीडर आएगा, सब कुछ ठीक करेगा, ओके। तो ये लीडर का नाम क्या था? शिम। वेरी गुड। ये एक ने बोला, वो तीनों रिपीट करो, बराबर है कि नहीं? अपन शिमशोन, सैमसन, वेरी गुड। एक व्यक्ति सोरा नगर का निवासी था, उस व्यक्ति का नाम मनोह था, वह दान परिवार के समूह से था। मनोह की एक पत्नी थी, ओके। एक व्यक्ति था, सोरा नगर का था, उसकी पत्नी भी थी, ओके। ये व्यक्ति का नाम था मनोह, और मनोह की एक पत्नी थी, उसे बच्चा नहीं हो रहा था। और अब एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि तुझे बच्चा नहीं है, पर तुझे बच्चा होने वाला है, और ये बच्चा लड़का होगा, और तुझे इसका नाम शिमशोन रखना है, और ये जो लड़का होगा ये पहले से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, इसलिए तुझे खाने पीने में परहेज करना पड़ेगा। तू कुछ भी खा पी नहीं सकती, तू नशीले चीज़ें नहीं खा सकती, तू दारू नहीं पी सकती, तू और भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकती, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी फटाफट, ओके। एक व्यक्ति सोरा नगर का निवासी था, उस व्यक्ति का नाम मनोह था, वह दान परिवार के समूह से था। मनोह की एक पत्नी है, दान मतलब समझा कौन है? नहीं, अब्राहम, इसहाक, याकूब के 12 बच्चों में से एक लड़के का नाम क्या था? दान। उस दान के पीढ़ी से कौन आने वाला था? शिमशोन। यहूदा के पीढ़ी से कौन आने वाला था? यीशु। लेवी के पीढ़ी से कौन आने वाला था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बराबर। कोरा किसके से यहाँ से था? कोरा आप पता नहीं यार, 2-3 महीने पहले लिया। कोरा क्या, हमको क्या पता कहाँ से आया है कोरा। कोरा कहाँ से? यही काम धंधे करो भाई, बाकी में सब इंटेलिजेंट हो, इतनी इंटेलिजेंस है ना कि पूछो मत, बट ये इसमें इंटेलिजेंस नहीं है। कोरा कहाँ से? लेवी, ठीक है। चलो अब ये कहाँ से? शिमशोन किससे आ रहा था? दान।
मैं बोलने के बाद मेरे मुंह को पढ़ और बाद में उत्तर दे। ओके। वह दान के परिवार समूह से था। मनोह की एक पत्नी थी, किंतु वह कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। यहोवा का दूत मनोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हो, किंतु तुम गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा। बोला ना, है ना? तुम दाख मधु या कोई नशीली पीने की चीज न पियो। क्या रिस्ट्रिक्शंस थे उसको? दाख मधु मतलब दारू नहीं पीनी है और नशीले चीजें हैं वो खानी नहीं है। किसी भी अशुद्ध जानवर को न खाओ। वहाँ पे क्या था, उस टाइम पे कोई भी जानवर वो लोग खाते थे, पर यहाँ पे उसके जो पत्नी थी, मनोआ की पत्नी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कोई भी अशुद्ध जानवर को नहीं खाना है। ठीक है। अशुद्ध जानवर मतलब पता है, अशुद्ध जानवर कुछ कुछ होते थे गंदे, जो परमेश्वर ने नियुक्त किए थे कि भाई ये जानवर गंदे अशुद्ध है। चमगादड़, बैट, उल्टा आता है ना, वटवागुड़, नशीब, वटवागुड़, ऐसे कोई जानवर है जो नहीं खाने हैं, समझा ना? हाँ, तो बोला था भाई ये नहीं खाना है। मेरे से ज़्यादा पता है इनको, नाटक कर रहे सब लोग, है ना? वटवागुळ मराठीत आणि हिंदीमध्ये हिंदी में क्या बोलते रे, चमकादड़। आता पुढे जाऊ मी, पुढे का व्हेरी गुड, सॉरी 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 क्यों? क्योंकि तुम सचमुच गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा। वह विशेष रूप से परमेश्वर के प्रति एक विशेष रूप में समर्पित होगा। ठीक है। वो पुत्र कौन था? पुत्र को कौन था वो? ओ पुत्र का नाम क्या था? तू गपराना, तुझ्यामुळे सगळ्यांना कळतं, नाही तर तिघं पण असे डमसारखे बसलेले असतात। शमशान, तू शमशान तर शमशान, पण बोलले ना वह एक नाजिर होगा। ओके। अभी नाजिर क्या है वो हम अभी नहीं सीखेंगे, मैं सिर्फ नाजिर होगा ये मैं सिर्फ बता रही हूँ, पर नाजिर क्या है उसके लिए हम वचन का एक पार्ट कंप्लीटली ले रहे हैं ताकि आपको नाजिर क्या है पता चले। ठीक है। वो नाजिर होगा और इसीलिए तुम्हें उसके बाल कभी नहीं काटने चाहिए। मतलब क्या उसको बोला है? उसके बाल कभी काटने नहीं है। परमेश्वर का व्यक्ति वो पैदा होने से पहले परमेश्वर का व्यक्ति होगा, पहले से ही वो परमेश्वर का व्यक्ति होगा। वह इजराइल के लोगों को पलिश्ती लोगों की शक्ति से मुक्त कराएगा। तो शिमशोन क्या करने वाला था? इजरायली लोगों को पलिश्ती की लोगों से मुक्ति देने वाला था। तब वह स्त्री अपने पति के पास गई और जो कुछ हुआ था बताया। उसने कहा, परमेश्वर के पास से एक व्यक्ति मेरे पास आया। अब ये व्यक्ति ने सुना, मनोआ की पत्नी ने सब सुना। वो भाग के अपने पति के पास गई, पति को बोला कि भाई ये ऐसा आदमी आया था, उसने मुझे बोला कि तू बच्चा गर्भवती नहीं हो सकती, पर तू अब होने वाली है और तेरे को एक लड़का होने वाला है, और जब तेरे को लड़का होगा तो नशीले चीज़ें खानी नहीं है, ना दारू पीनी है। तो ये आदमी बोलने लगा, इसका पति, कि भाई ये कौन है? तो उसने बोला, मैंने नाम वाम नहीं पूछा उसका, पर एक भयानक दिखने वाला आदमी था। तो ये मनोआ ने प्रार्थना की। मनोआ मतलब वो पति ने मनोआ ने प्रार्थना की कि यार परमेश्वर, जो भी व्यक्ति वो आया था उसको एक बार वापस भेज, ताकि हमें पता चले कि हमारे लड़के को हमें कैसे बड़ा करना है, वरना हम कहीं गलती ना कर दे। ठीक है, हम पढ़ेंगे वचन। उसने कहा, तब वह स्त्री अपने पति के पास गई और जो कुछ हुआ था बताया। उसने कहा, परमेश्वर के पास से एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह परमेश्वर के दूत की तरह न्यात होता था। वो बहुत भयानक दिखाई पड़ता था और मैं डर गई थी। मैंने उससे यह नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, किंतु उसने मुझसे कहा, तुम गर्भवती हो और तुम्हें एक पुत्र होगा। कोई दाख मधु या नशीली पीने की चीज़ें मत पियो। कोई ऐसा जानवर ना खाओ जो अशुद्ध है, क्योंकि वह लड़का विशेष रूप से परमेश्वर को समर्पित होगा। वह लड़का जन्म के पहले से लेकर मरते दम तक परमेश्वर का विशेष व्यक्ति होगा। तो उसने क्या कहा? 3 चीज़ें उसको बोली गई कि एक तो नशीली चीज़ें खानी नहीं है, दारू नहीं पीनी है और अशुद्ध जानवर खाना नहीं है।
तब मनोआ ने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू परमेश्वर के व्यक्ति को हम लोगों के पास फिर भेज, है कि नहीं, क्योंकि वो हस्बैंड नहीं था उसका, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि वह हमें सिखाए कि हम लोगों के यहाँ जन्म लेने वाले बच्चे के साथ हमें क्या करना चाहिए। देखो, वो चोजन वन था, चुना हुआ व्यक्ति था, और एक चुने हुए व्यक्ति के साथ तुम कुछ भी बर्ताव नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? उसका पालन पोषण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम कुछ भी करोगे तो नहीं चलेगा परमेश्वर को। अभी ऐसा चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर ने ऐसे घर में डाला था जो एक साधारण घर था, जहाँ के लोग बहुत साधारण थे, और उन्हें पता नहीं था कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है जो पहले से ही परमेश्वर का मकसद लेकर आया है और मरते दम तक परमेश्वर का व्यक्ति के रूप में रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, इनके ऊपर बहुत ही परमेश्वर का प्रकाश होता है, इनके ऊपर परमेश्वर का फोकस इन बच्चों के ऊपर होता है। और आज भी ऐसे बच्चे हैं जो चुने हुए बच्चे कहलाए जाते हैं, जो परमेश्वर के काम के लिए जन्म लेते हैं। वो वैसा चुना हुआ लड़का था, ये ध्यान में रखना। और चुने हुए लड़कों की पालन पोषण करना इतना आसान नहीं है। नॉर्मल जो लड़का है, जो कुछ अपना करने वाला है, नॉर्मल अपना काम धंधा करने वाला है, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के मकसद पूरा करने वाला है, अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका पालन पोषण बहुत अलग तरीके से होता है। समझ में आ रहा है? उसके लिए बहुत अलग रूल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर ने मनोआ की प्रार्थना सुनी। परमेश्वर का दूत फिर उस स्त्री के पास आया, तब आया जब वह खेत में बैठी थी, किंतु उसका पति मनोआ उसके साथ नहीं था। इसलिए वह स्त्री अपने पति से यह कहने के लिए दौड़ी, वह व्यक्ति लौटा है, पिछले दिन जो व्यक्ति मेरे पास आया था वह यहाँ है। मनोआ उठा और उस अपनी पत्नी के पीछे चला। जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने मेरी पत्नी से बातें की थी? किसने पूछा? मनोआ ने पूछा कि तुम वही है क्या जिसने मेरी पत्नी से बात की थी? दूत ने कहा, मैं ही हूँ। और वो कौन था? वो था स्वर्गदूत। ठीक है, कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा यहाँ से उठ के नहीं आया था कि तेरे को बच्चा होगा बच्चा होगा। वो स्वर्गदूत था। समझ में आ रहा है? अतः मनोआ ने कहा, मुझे आशा है कि जो तुम कहते हो वह होगा। यह बताओ कि वह लड़का कैसे जीवन बिताएगा, वह क्या करेगा? यहोवा के दूत ने मनोआ से कहा, तुम्हारी पत्नी को वह सब करना चाहिए जो मैंने उसे करने को कहा है। उसे अंगूर की बेल पर उगी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ें, अंगूर वाली, ग्रेप के चीज़ें, जो चीज़ें ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, उसकी चीज़ें नहीं खानी है। उसे दाक मधु या कोई नशीले पीने की चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। उसे किसी ऐसे जानवर को नहीं खाना चाहिए जो अशुद्ध हो। उसे वह सब करना चाहिए जो करने का आदेश मैंने उसे दिया है। हालेलुया। स्टोरी समझ में आ गई? फिर ये क्या करता है? ये स्वर्गदूत आता है और कहता है क्या कि ये करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा पॉइंट शुरू होता है। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है, Samson was born with a purpose. Samson was born with a purpose. शिमशोन एक मकसद से जन्मा था। शिमशोन एक मकसद से जन्मा था। शिमशोनाचा जन्म एका उद्देशासाठी झाला होता। शिमशोनाचा जन्म एका उद्देशासाठी झाला होता। कौन सा रिपीट करूं? हिंदी, मराठी? ये दोनों हिंदी मराठी दोनों लिखते हैं ना? उद्देशासाठी झाला होता। लिहिलं?
ओके चलो ए फास्ट। देखो शिमशोन जो था उसका जन्म कोई नॉर्मल जन्म नहीं था। ओके, वो एक मकसद के लिए जन्मा था और वो एक चुना हुआ व्यक्ति था। चुने हुए व्यक्ति जो होते हैं वो परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति होते हैं और परमेश्वर उनको पृथ्वी पर भेजता है ताकि उसका मकसद पूरा कर सके। ये पृथ्वी पर हर कोई चुना हुआ नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति होते हैं, जो परमेश्वर के लीडर या किंग या बड़े बड़े लोग बनते हैं जो चुने हुए हैं। ठीक है, अब जब इन चुने हुए व्यक्तियों का जन्म होता है तो ये कोई मामूली काम करने के लिए पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते हैं, ये बड़े बड़े काम करने के लिए जन्म लेते हैं। ठीक है, तो शिमशोन का एक बड़ा मकसद था और बड़ा मकसद क्या था कि उसे एक लीडर बनकर इजरायली लोगों को फिलिस्ती लोगों के शासन से बाहर निकालना था। जैसे मूसा ने देखा ना, मूसा को परमेश्वर ने क्यों भेजा? ताकि इजरायली लोग जो रो रहे थे, फैरो राजा उनके ऊपर काम उनको दे रहा था, वो रो रहे थे, उस शासन से इनको बाहर निकालना था, इसलिए मूसा आया। वैसे ही अब मूसा का टाइम तो खत्म हो चुका था, अब हम आगे बढ़ चुके थे, वो कनान देश में आ चुके थे। पर मैंने क्या बोला, इनका काम धंधा ही ये था कि पाप करो, वापस परमेश्वर कोई लीडर भेजेगा, वापस इनको परमेश्वर के मार्ग पर चलाएगा। ठीक है, तो अब ये जो लीडर था वो था शिमशोन। शिमशोन कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो चुना हुआ व्यक्ति था, पर उसमें भी बहुत सारे खामियां थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक चुना हुआ व्यक्ति है पर उसमें भी खामियां है। नोबडी इज परफेक्ट, है कि नहीं? कोई परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी चुने हुए व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से एक अलग तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है, अलग तरीके की मदद मिलती है। ठीक है, शिमशोन का मकसद ये था कि उसको फिलिस्ती लोगों जो इजरायली लोगों के ऊपर राज कर रहे थे, उस राज को तोड़ के इजरायली लोगों को अलग करना था और यहोवा के करीब लाना था। हालेलुया। ओके, और ये जो काम था ये कोई आसान काम नहीं था। फिलिस्ती लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, बहुत शक्तिवान लोग थे, बहुत पैसा था इनके पास और बहुत ही मतलब बहुत संख्या में ये लोग थे, फिलिस्ती लोग। ठीक है, इनका सामना करना कोई छोटी बात नहीं थी। दाऊद और गोलियत की हमने स्टोरी सुनी है कि नहीं? तो गोलियत कौन से टीम का था? फिलिस्तीन टीम का था, और इसीलिए वो इजरायली लोगों को जब बोलता था, तो जब गोलियत बाहर आता था तो वो कहता था कि ये मुझे तुम्हारे पूरे टीम से नहीं लड़ना है, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं करना है, मैं अकेला 8 फुट का आदमी हूँ, 7 फुट या 8 फुट का आदमी हूँ जो बाहर आया हूँ लड़ने के लिए। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो तुम्हारे ऐसे एक बंदे को भेज जिसको मैं हराऊंगा। हालेलुया। गोलायत बहुत बड़ा था, आपको पता है ना, और एक ही वैसे ही लोग उनके टीम में थे। पर हमारे यहाँ से कौन था? दाऊद था। जो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने बोला तू बड़ा होगा भाई, हम तुझसे डरते नहीं है, मेरा परमेश्वर तुझसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। उसने लिया पत्थर अपने इसमें डाला, बेचकी में क्या बोलते उसको, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, बेचकी मध्ये टाकला। ओके, और शूट किया और उसके माथे पे वो पत्थर लग गया, वो वहीं पे मर गया। ओके, पर दाऊद खुद के बल से नहीं कर सकता था, उसको मदद कहाँ से मिल रही थी? परमेश्वर से। और वैसे ही सैमसन क्या था? शिमशोन को फिलिस्ती लोगों से बाहर निकलना, फिलिस्ती लोगों को इजरायली लोगों के ऊपर का जो राज था उनका, उस राज को तोड़ना था और इजरायली लोगों को मुक्त करना था। हालेलुया। तो शिमशोन का क्या मकसद था? देखो, हर एक व्यक्ति का, वैसे ही जैसे शिमशोन का एक मकसद है, वैसे ही हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक मकसद दिया है। जब आप लोग आने वाले दिनों में यीशु में आओगे, तब आपको भी परमेश्वर एक मकसद देने वाला है। समझ में आ रहा है? आपको भी परमेश्वर एक मकसद से चलाएगा। और वो मकसद क्या है? आप देखो, आप परमेश्वर में जब आते हो तो परमेश्वर आपको ऐसे नहीं रखता है कि आ गए मेरे बच्चे यीशु में, चलो इनको ऐसा रखा। नहीं, हर किसी को अलग अलग मकसद दिया गया। ठीक है, कुछ लोगों का मकसद है हॉस्पिटल में काम करना, कुछ लोगों का मकसद है फिल्म्स में काम करना, कुछ लोगों का मकसद है वार्ड बॉय बनना, कुछ लोग इंजीनियर बनना, कुछ लोगों का पायलट बनना। ओके, अलग अलग है, पर सबसे इम्पोर्टेंट मकसद
सारे जितने भी लोग हैं जब वो यीशु में आते हैं, उनका एक मकसद जो सबके लिए कॉमन रहता है, वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हमें परमेश्वर का सुसमाचार हमारे लोगों को बताना है। हालेलुया, आमेन। क्योंकि जब आप यीशु में आओगे, आप यीशु को अपनाओगे, अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप उसे स्वीकार करोगे और अपना जीवन यीशु को दोगे, आपका बपतिस्मा होगा, तब आप बच जाओगे। बट आपको बचने के बाद आप अगर देख रहे हो कि आप जहाँ पे काम करते हो, हॉस्पिटल में काम हो, ट्रेन के इसमें काम करते हो, फ्लाइट्स के इसमें काम करते हो, कंपनीज में काम करते हो, आपका मकसद ये है कि आपको लोगों को यीशु के बारे में बताना है कि यीशु सच्चा परमेश्वर है। और अब अगर यीशु को आपने अपनाया, आपको उद्धारकर्ता के रूप में अगर स्वीकार किया, तो आप पाप के दंड से बचोगे, आप नरक नहीं जाओगे, आप स्वर्ग जाओगे। रोमियो 6:23 जो वचन है, वो वचन कहता है कि पाप का दंड है मृत्यु। मृत्यु मतलब पाप अगर आपने किया है, अगर आपने पाप किए हैं, तो परमेश्वर के नज़र में आप पापी हो। पर पापी हो तो उसका दंड भी है, और दंड क्या है? मृत्यु। पर मृत्यु कैसी मृत्यु? मृत्यु तो सबको आने वाली है। आत्मिक मृत्यु मतलब मरने के बाद शरीर तो मर जाएगा, शरीर मौत आने के बाद शरीर तो मर जाएगा, पर आपका आत्मा, अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, तो आपको, आपके आत्मा को नरक में डाला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इस दंड से आपको बचना है, तो परमेश्वर ने ऑलरेडी रास्ता बना दिया है। यीशु वही दंड लेने के लिए पृथ्वी पर आया था। वो पृथ्वी पर इसी के वजह से आया था, ताकि सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड वो अपने ऊपर ले सके, और जो भी कोई मनुष्य उसके नाम पर विश्वास करेगा, उसके पाप क्षमा होंगे, और फिर वो व्यक्ति नरक नहीं पर स्वर्ग जाएगा। जीवन के पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा, और वो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। तो ये क्या है? ये सुसमाचार हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। आप अगर बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, टॉलीवुड में हो, किधर भी हो, आपके देश में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, आपके बिल्डिंग में, आपके दोस्तों के बीच में, आपको यीशु का प्रचार करना है। आपको उन्हें बताना है कि अगर तुमने यीशु के पीछे चले, तो ही तेरे पाप का दंड से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। अगर यीशु को अपनाया नहीं, तो तुम नरक जाने वाले हो। और ये एक मकसद सबके लिए है, सिर्फ पास्टर लोगों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए। समझ में आ रहा है? अगर नरक से बचना है, नरक की आग से बचना है, तो दंड तो क्षमा होना चाहिए कि नहीं? हमने पाप तो किए, हर व्यक्ति पाप। बाइबल में, रोमन्स की किताब में कहा जाता है कि हम सब पापी हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब पापी है। पर पापी है तो अपना दंड, हमें पाप होने की वजह से दंड क्या मिलेगा? नरक में हम जाएंगे। पर उस दंड से बचने के लिए परमेश्वर ने रास्ता निकाला है, और वही रास्ता हमें लोगों को बताना है। वो रास्ता कौन है? यीशु। अगर यीशु को अपनाओगे तो आप जाओगे स्वर्ग। यीशु, स्वर्ग जाने का द्वार यीशु है। हालेलुया। स्वर्ग जाने का द्वार यीशु है। यीशु को अपनाओगे तो ही स्वर्ग जाओगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए शमशोन या अलग अलग लीडर्स परमेश्वर पृथ्वी पर भेजता था उसके कार्य करने के लिए, कि बाबा उसके लोग भटक गए थे, अलग अलग भगवानों के पीछे भाग रहे थे। परमेश्वर को पता था कि अगर ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो ये नरक जाएंगे, इसलिए मुझे मेरे लीडर को भेजना जरूरी है। मुझे इन शासकों के, क्योंकि देखो जो शासन करेगा आपको, आपके ऊपर, आपको उसी की बात माननी होगी, है कि नहीं? नेबुकदनेस्सर का क्या हुआ? नेबुकदनेस्सर के पास जब इजरायली लोग, जब वापस से इजरायली लोग पाप करने लगे, नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने तैयार किया। बाबिलोन से नेबुकदनेस्सर को भेजा, और नेबुकदनेस्सर राजा ने इजरायली लोगों को उठा के बाबिलोन में लेकर गया। आज का बाबिलोन क्या है? सीरिया, ईरान, वो टाइप वहाँ का। और वहाँ के कस्टम्स क्या थे? मूर्ति पूजा। उसने अपनी मूर्ति खड़ी कर दी, 20 फीट की सोने की मूर्ति, और उसने बोला अब उसके सामने झुको। अब परमेश्वर को पता था कि अगर जो लोग मूर्ति पूजा में जाएंगे, उनके वो लोग पापी होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के आज्ञा में क्या कहा है? एक आज्ञा जो मूसा के आज्ञा में दी है कि किसी मूर्ति के सामने मत झुको, सारा पूरे मन धन प्राण से
किसके पीछे चलो? ये परमेश्वर यीशु के पीछे, यहोवा के पीछे। और अगर तुम मूर्ति पूजा के पीछे जाते हो और करते हो तो तुम्हें दंड मिलने वाला है। तुम्हारे ऊपर तुम पापी करार किए जाओगे, तुम दोषी, तुम्हारे ऊपर दोष लगेंगे, तुम पापी के रूप में दिखाई दिए जाओगे। और अगर तुम पापी हो, तुमने पाप किए हैं, तुम्हें दंड मिलेगा और तुम कहाँ जाओगे? नरक। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग लेकर जाने के लिए अपने लोगों को भेजता था, ताकि मेरे लोग नीचे आए और इन लोगों को बताए कि सत्य मार्ग और जीवन यीशु है। यीशु के बिना कोई नहीं है। अगर यीशु को नहीं अपनाए तो नरक श्योरली जाना है आपको, और नरक में से बाहर आपको कोई नहीं निकाल सकता। पर अगर आपने यीशु पर विश्वास किया तो आप स्वर्ग जाओगे और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया। तो आपका मकसद क्या है? शिमशोन एक मकसद से जन्मा हुआ था। उसका मकसद क्या है? फिलिस्ती लोगों को अंधकार से, इजरायली लोगों को फिलिस्ती लोगों के शासन से बाहर निकालना है। आपका मकसद क्या है? आपको लोगों को सुसमाचार देना है और शैतान के शासन से आपको लोगों को निकालकर परमेश्वर में लाना है। आज जो लोग शैतान के पीछे चल रहे हैं उनकी लाइफ कुछ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब लाइफ है, और उनको लगता है बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है। एक बार मर जाएंगे ना, पता है वो डीमंस उनको कहाँ लेकर जाते हैं? नरक। घोस्ट मूवी मैंने देखा, मैं अब एक्स्ट्रा थोड़ा बोल सकती हूँ। घोस्ट मूवी में एक घोस्ट मूवी आया था 1990 में। उसमें बहुत अच्छा दिखाया कि एक आदमी अपने उसके पास बहुत पैसे होते हैं। वो अकाउंटेंट होता है और वो दूसरे के अकाउंट संभालता रहता है। उसके पास बहुत पैसे होते हैं और उसका दोस्त ना देखता है कि भाई ये बहुत बड़े बड़े लोगों का अकाउंट संभाल रहा है जिनके पास बहुत पैसे हैं, और ये लालच में आके एक आदमी को सुपारी देता है कि भाई इस आदमी से चाबी ले, कैसे भी करके मेरे को इसका पर्स चोरी करना है, इसमें पासवर्ड लिखे, मैं पासवर्ड डाल के इनके अकाउंट से पैसा ले लूँगा। ठीक है, पर वैसा होता नहीं है। वैसा होता नहीं है। और होता क्या है, जो आदमी इस व्यक्ति को मारने के लिए गया होता है वो आदमी मारता नहीं है, पर्स नहीं लेता है, उस व्यक्ति को मार ही डालता है। अब वैसा दिखा है कि उसका आत्मा बाहर आता है। वो पिक्चर में उसका आत्मा वो बाहर आता है और उसका आत्मा के लिए परमेश्वर बोलता है कि चल ऊपर, पर वो आता नहीं है क्योंकि उसका कुछ काम बाकी रहता है। और बाद में ऐसा रहता है कि वो बदला लेता है उस व्यक्ति से। उसे पता चलता है कि इसे इस आदमी ने भेजा है। उस आदमी का सीन कैसा दिखा है पता है? वो मारामारी करने जाता है पर वो एक जगह गिर जाता है और ऊपर से कांच आकर उसको लगती है। जब वो कांच लगती है तो ऐसा दिखा है कि उसका आत्मा बाहर आया है और उसको लगता है कि यार मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा ही हूँ। और उसका आत्मा किसको देखता है? ये सामने वाले मरे हुए व्यक्ति को। उसके आत्मा बाहर होता है। तो जब वो देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे तू यहाँ पे कैसे? तो उस व्यक्ति जो मरा हुआ है उसे पता है कि ये वो जिंदा आदमी नहीं है, उसका आत्मा बात कर रहा है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसका आत्मा बाहर आया है। और ऐसा दिखाया है कि उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसका आत्मा बाहर आया है, और वहाँ पे डीमंस जो है, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो कहाँ का आदमी था? नरक का। तो दुष्ट आत्माएं, तुमने अगर कवनेंट किया है शैतान के साथ तो तुम कहाँ जाओगे? नरक में। तो दुष्ट आत्मा आएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको लेकर जाएंगे, चलो भाई इधर से इधर जाना है अपने को। ऊपर तो जा नहीं सकते, अपन को नीचे ही जाना है। अपन ने करार किया है ना? पर अभी करार किया है, वो 60-70 साल के लिए मज़ा मारा है, 80 साल 90 साल के लिए मज़ा मारा है, बट आगे के हमेशा के लिए लाइफ नरक में बितानी है, हमेशा के लिए नरक में जाना है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे हमेशा के लिए नरक में रहे। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? मैं अपने लीडर को भेजूंगा। कौन आएगा? शिमशोन। हालेलुया। और शिमशोन सिर्फ शिमशोन नहीं है, अभी भी परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति अभी भी पृथ्वी पर है। समझ में आ रहा है? ऐसा मत समझो कि ये शिमशोन और ये ग्रेट मैन वहीं पे थे, सिर्फ बाइबल में है। नहीं, परमेश्वर के अभी भी लोग, परमेश्वर अभी भी अपने लोगों को पृथ्वी पर भेजता है ताकि वो लोगों को अंधेरे से उजाले में ला सके। आमीन।
सो देखो, आपका काम कुछ भी हो सकता है। आप एक पास्टर हो सकते हो, एवेंजलिस्ट हो सकते हो, प्रॉफिट हो सकते हो, आप घर के काम करने वाले हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। वो आपको जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है वो आपको करना है। मतलब आपको परमेश्वर के मकसद में चलना है। अब आप बोलेंगे परमेश्वर के मकसद में चलना मतलब क्या है? मकसद में चलना मतलब जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में होना चाहिए वो आपको करना है। मतलब कि अगर आप माँ बाप बनते हैं तो आपको परमेश्वर को पूछना है कि परमेश्वर मैं इसको कौन से स्कूल में डालूं। परमेश्वर आपको बताएगा कि ये स्कूल में डाल, तो आपको वो स्कूल में डालना है। इसको कौन से कॉलेज में डालूं, परमेश्वर बोलेगा ये कॉलेज में डाल, इसको वो कॉलेज में डाल। परमेश्वर को आपको पूछना है कि बच्चा बड़ा होने के बाद 10वीं के बाद परमेश्वर इससे कौन सा ये लेना चाहिए, स्ट्रीम लेना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कौन सा लेना चाहिए। परमेश्वर बोलेगा कि चल नहीं, इसको कॉमर्स लेना चाहिए, तो वो कॉमर्स में आपको उसे डालना है। जो परमेश्वर बोलेगा आपको वो करना है। जब परमेश्वर आपको वो बोलेगा और जब वो आप करोगे, उसे बोलते हैं परमेश्वर के मकसद में चलना। हालेलुया। ओके, बट सबसे बड़ा मकसद परमेश्वर का आज भी क्या है? हम बड़े बड़े, देखो हम पृथ्वी पर अलग अलग लोग हैं कि नहीं। कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग रिच है, कुछ लोग मिडिल क्लास है, पर हर कोई व्यक्ति जब यीशु में आएगा तो यीशु के लिए सब समान है कि नहीं। यीशु ऐसा देखता है ये झाड़ू वाली है, ये एक्टर है, नहीं। जब सब आएंगे सब इक्वल है। ये सोना नहीं है, समझ में आ रहा है? तो जब परमेश्वर ऐसा देखता है तो आपको क्या करना है? आपका एक मकसद जो बनता है वो है लोगों को सुसमाचार देना। आपके करीबी लोग जिनसे आप जाके बात कर सकते हो, आपको उनको बोलना है कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, और उसके पीछे चलोगे तो आपके पाप के दंड क्षमा होंगे और आप स्वर्ग जाओगे, वरना नरक जाओगे। समझ में आ रहा है? और ज़रूरी नहीं है कि आपके पहचान वाले लोग। हम लोग ने तो कितने लोगों को लिफलेट बांटे हैं जो हम जिनको जानते तक नहीं है कि नहीं। हमने किधर घर पे जाके लिफलेट डाल के आए हैं, क्या क्या हमने किया है। बट हमारा एक इंटेंशन राइट था कि हम नहीं चाहते थे कि लोग अंधकार में जिए। हमने मार्केट में भी बैठ दिया है ना, यीशु कौन है, किधर हम टैक्सी में बैठते थे, टैक्सी ड्राइवर को देते थे। हमने कई सारे लोगों को दिया है। आए नहीं आए वो उनकी मर्जी, और मुझे पता है वो क्यों नहीं आए। टाइम में आने वाले हैं वो उनका एक टाइम है जो परमेश्वर ने रखा है, उस टाइम के बाद वो आने वाले हैं। अब इतनी गर्दी होने वाली है कि पता नहीं हम कहाँ बैठेंगे और मुझे प्रीचिंग कहाँ पे करूँ, है कि नहीं। मुझे 2-3 लोगों के ऊपर बैठ के प्रीचिंग करना पड़ेगा। ऐसा होने वाला है बिकॉज इतनी गर्दी होने वाली है। ठीक है, तो अभी यहाँ से ओके, जेरेमाया 1:5 हम देखेंगे। यिर्मयाह अब ऐसा मत समझो कि अरे यार ये तो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए नहीं। जब आपका उद्धार हो जाएगा हर एक व्यक्ति चुना हुआ बनेगा। आमेन। वापस आपका जब उद्धार हो जाएगा तो हर व्यक्ति क्या बनेगा? चुना हुआ व्यक्ति बनेगा। समझ में आ रहा है? क्यों इतने डल हो यार? क्यों कुछ समझ में नहीं आता तुमको, या एक्टिंग कर रहे हो? देखो यिर्मयाह 1:5 में पढ़ रही हूँ। बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू, बिफोर यू वर बॉर्न आई सेट यू अपार्ट, आई अपॉइंटेड यू ॲज अ प्रॉफिट टू द नेशन्स। मराठीमध्ये वाच. तू आईच्या गर्भात जन्म घेण्यापूर्वीपासूनच मला माहीत होतास. तू जन्मला येण्यापूर्वीच मी तुझी विशेष कामगिरीसाठी निवड केली. राष्ट्राचा संदेष्टा म्हणून मी तुझी निवड केली. तुम्हारी माँ की गर्भ में रखने, यिर्मयाह 1:5, तुम्हारी माँ के गर्भ में रखने के पहले मैंने तुमको जान लिया. तुम्हारे जन्म लेने के पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था. मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी होने को चुना था. हालेलुया. तो आपको जब आप देखो, कुछ लोगों को परमेश्वर
जब वो जन्म लेते हैं तभी वो चुने हुए होते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर बाद में चुनता है। जैसे बहुत लोगों का उद्धार होने वाला है और बहुत लोग यीशु में आने वाले हैं। बोलो जय यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको लाने वाला है, आपका उद्धार करने वाला है। और जब आप यीशु मसीह में आओगे तो आप क्या होंगे? चुने हुए होंगे। यू आर गोइंग टू बी अ चोजन वन यार, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल मैन। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा, आपको स्वर्गदूत दिए जाएंगे और आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। बोलो जय मसीह की। हालेलुया। यू नो क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण चीज नहीं है जो मैं बोल रही हूँ यार। एक उद्धार होना मतलब नरक की आग क्या है ना, वो मरे हुए लोगों से पूछो जरा जो आग में जल रहे हैं, उनसे बात करो फिर समझेगा आग क्या है। आपको अंदर से खुश होना चाहिए। और मैं बोलूँ और जय मसीह की तब नहीं, आमेन आमेन हालेलुया खुद से करना चाहिए आपको। पर आप लोग नींद मार रहे हो इधर, फर्क ही नहीं पड़ता है। जा रहे हैं नहीं जा रहे क्या फर्क पड़ता है नरक में? तो थोड़े 5 मिनट के आग दूं मैं, नरक बोलूं कि परमेश्वर को लेकर जा, इनको इनके आत्माओं को 5 मिनट के लिए नरक में लेकर जा। 5 मिनट में चर्बी उतर जाएगी। आपको क्या मिलने वाला है उसका अंदाजा भी है आपको? खुश हो जाओ, हालेलुया बोलो, परमेश्वर धन्यवाद बोलो। मैं जब बोलती हूँ तब आप बोलोगे। विश्वास है आपका उद्धार हुआ है? आपका उद्धार हुआ है? नहीं ना? कुछ भी। समझा गया? जो है वो है। मैं मुखौटा पहनना अच्छा नहीं लगता है, समझ में आ रहा है? मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट आने वाले टाइम में आपको आप चुने हुए व्यक्ति बनने वाले हो। समझ में आ रहा है? गुड। God is going to birth, दूसरा पॉइंट, God is going to birth new things in your life soon. God is going to birth new things in your life soon. बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में खुशखबरी लाने वाला है। बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में खुशखबरी लाने वाला है। खूप लवकरच देव तुम्हाला चांगल्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात करणार आहे। खूप लवकरच देव तुमच्या आयुष्यात चांगल्या गोष्टी करणार आहे। ठीक है, लिखा? बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में खुशखबरी लाने वाला है। ओके हम न्यायों की पुस्तक 13:1-3 पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक 13:1-3। Again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, so Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. A certain man of Zorah named Manoah from the clan of Danites had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son."
मराठीमध्ये वाच. इस्रायल लोकांनी पुन्हा परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते केले तेव्हा परमेश्वराने त्यास 40 वर्ष पलिश्तीनच्या हाती दिले. त्यावेळी सरा गावी दान कुळातला एक पुरुष होता. त्याचे नाव मानोहा होते. त्याची स्त्री वध्या होती. तिला मूलबाळ झाले नाही. परमेश्वराच्या दूताने त्या स्त्री दर्शन देऊन सांगितले, पहा, तू वधे असून तुला काही मूलबाळ झाले नाही, पण आता तू गर्भवती होऊन तुला पुत्र होईल. आमेन. यहोवा ने न्यायों की पुस्तक 1 से 3, यहोवा ने इज़राइल के लोगों को फिर पाप करते हुए देखा, इसलिए यहोवा ने पलिश्ती लोगों को उन पर 40 वर्ष तक शासन करने दिया. एक व्यक्ति सोरा नगर का निवासी था. उस व्यक्ति का नाम मनोहा था. वह दान के परिवार समूह से था. मनोहा की एक पत्नी थी, किंतु वह कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी. यहोवा का दूत मनोहा की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हो, किंतु तुम गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा. हालेलुया. आमेन. देखो हो क्या रहा था. ये जो मनोहा था और उसकी जो पत्नी थी वो चाइल्डलेस थी, मतलब उसे बच्चा नहीं हो रहा था. ठीक है. और उस टाइम पे बच्चा नहीं होना मतलब वहाँ पर बहुत उस व्यक्ति को, उस औरत को श्रापित माना जाता था. उस टाइम पे यहूदी लोग अगर देखते थे कि भाई इसको, एक औरत को बच्चा नहीं हुआ है, तो वो कहेंगे कि ये श्रापित है, ये श्रापित है. क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं हुआ. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर ये वो लोग सोशल स्टिग्मा से गुजरते थे. आज के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आज के टाइम पे सरोगसी आ गई है. देखा है ना आपको? मिमी पिक्चर देखा है क्या? नहीं देखा है. ठीक है, मैं बता दूँ. सरोगसी मतलब क्या होता है कि अब किसी और का बीज, आदमी का स्पर्म लेकर उस दूसरे औरत के पेट में डाला जाता है थ्रू IVF इंजेक्शन देके. उनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा ही डाला जाता है और उस औरत के पेट में वो बच्चा पैदा होता है. और वो बच्चा होने के बाद वो औरत क्या करती है, वो बच्चा दे देती है उन लोगों को जिनका वो है और उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? सरोगसी है. ओके. IVF ट्रीटमेंट्स चालू हुए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी आ चुके हैं. ठीक है. पर आज हमारे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है एक बेबी पैदा करने के लिए. और आज अगर नहीं भी बच्चा होता है तो लोग इतना मैटर नहीं करते, अडॉप्ट कर लेते हैं, है कि नहीं. दूसरा भाई एडॉप्शन सेंटर में जाके अच्छा कोई बच्चा ले लेते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं. आज हमारे इसमें इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी हमें बुरा लगता है. तो सोचो उस टाइम के, उस ज़माने में, कितने साल पुरानी बात है. उस ज़माने तो ये तो इतना मेडिकल विज्ञान इतना ये नहीं था, साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था, है कि नहीं. परमेश्वर की दया से ही सब कुछ होता था. और आज भी अगर विज्ञान बना है तो फिर भी विज्ञान फेल हो सकता है, परमेश्वर कभी फेल नहीं होगा. आमेन. समझ में आ रहा है. विज्ञान फेल हो जाएगा, परमेश्वर कभी फेल नहीं होगा. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज विज्ञान बड़ा है तो परमेश्वर नहीं है. नहीं, परमेश्वर आज भी है और विज्ञान जो बड़ा है वो परमेश्वर के दया से बड़ा है. आमेन. सुनो, उस टाइम पे वो जो औरत थी, वो उस औरत को श्रापित माना जाता था. कई लोग हंसते थे उसके ऊपर. ओके. कई लोग, अगर आप स्टोरी सुनेंगे हैना की स्टोरी अगर हम देखेंगे तो हैना की स्टोरी बहुत ही बुरी थी. अब वो क्या थी फिर आपको मैं बताती हूँ, फिर आप समझेंगे कि वो हो क्या रहा था. ठीक है. हैना जो थी वो एक औरत थी जिसके पति का नाम था एल्कना. ठीक है. एल्कना को 2 बीवियाँ थी, एक हैना और एक आई थिंक पेनिना. हाँ, ठीक है. अब ये जो दूसरी बीवी थी इसको 5 बच्चे हुए थे, बट हैना को एक भी बच्चा नहीं हो रहा था. तो पेनिना उसे चिढ़ाती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, तुझे एक भी नहीं है. एक दिन हैना क्या करती है, एक दिन हैना जाती है मंदिर में और वहाँ पे मंदिर में वो रोती है. इतना रोती है कि सामने वाला जो एली करके जो याजक बैठा है, इस याजक को लगता है इसने पिया है. प्रार्थना में वो इतनी दुखी है कि मुंह से प्रार्थना ही नहीं निकल रही. और मुंह के अंदर ही हम कभी करते हैं ना प्रार्थना, बाहर शब्द नहीं निकलते. क्योंकि कई बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि यार मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे. मतलब मैं इतनी दुखी हूं कि अब मांगने के लिए भी शब्द नहीं बचे हैं. यही चीज़ें
हन्ना के साथ हो रही थी। मांगने के लिए शब्द नहीं बचे थे और मुंह के अंदर वो कुछ 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 बोल रही थी। और एली जो याजक था उसे ऐसा लगा कि यार ये पी के आई है, तो वो ये उसको बोलता कि यार तू पी के आई है क्या? और उसने वो बोलती है भाई मैं पी के नहीं आई हूँ, मैं तो दुखी औरत हूँ, मेरे पास तो मेरा खुद का बच्चा नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और एली उसे कहता है कि जा, शांति से जा, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। जब वो आती है ओके वहाँ से, तो उसका जो हस्बैंड है वो उससे प्यार करता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हालेलुया, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और परमेश्वर उसका जो गर्भ था, जो बंद था, वो खुलता है। आमेन। जब ऐसा होता है तब हैना बहुत खुश होती है कि यार परमेश्वर ने मेरे निंदा अपमान दूर कर दिए हैं। ओके, तो अगर आपको एक मिनट, ओके, चलो फटाफट हम देखेंगे 1 शमूएल 1:6। स्टोरी देखनी है ना आपको, कि मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मुझे आपको दिखाना है कि ये एक्चुअल में ऐसे हुआ था। 1 शमूएल 1 ओके, हाँ 1 ते 6। मराठीमध्ये वाच. एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशातील रामाथाईम सोफियम नामक नगराचा रहिवासी पुरुष होता. त्याचे नाव एल्काना बिन येरोहाम बिन येलूह बिन तोहू बिन सूफ एफ्राईम असे होते. त्यात 2 बायका होत्या. एकीचे नाव हन्ना व दुसरीचे नाव पनिन्ना. पनिन्नेस मूलबाळ झाली होती, पण हन्नेस काही अपत्य नव्हते. हा पुरुष दरवर्षी आपल्या नगराहून सैन्याचा देव परमेश्वर याची आराधना करण्यास व होमबली अर्पण्यास शिलो येथे जात असे. एलीचे 2 पुत्र हफनी व फिनियास हे परमेश्वराचे याजक तेथे राहत असत. एल्काना यज्ञ करी तेव्हा तो आपली स्त्री पनिना हिला व तिच्या सर्व पुत्रास व कन्यास वाटे देत असे. पण हन्नेस तो दुप्पट वाटा देईल, कारण तिच्यावर त्याची प्रीती असे. परंतु परमेश्वराने तिची कूस बंद केली होती. परमेश्वराने तिची कूस बंद केली हे पाहून तिची सव तिला मनस्वी चिडून तेने करून ती कुडत राहील. समझा? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. सी एक हमें नहीं पता कि जिनको बच्चा नहीं है ना उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, पर बहुत सारे लोग हैं इतने अंदर इनके इतने खराब चीज़ें हैं ना कि वो लोग अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है ना तो बार बार पॉइंट करके उसका वीकनेस उसे बताएंगे कि तेरे पास बच्चा नहीं हो रहा है, तेरे पास बच्चा नहीं हो रहा है. उस औरत को बहुत बुरा लगता है. ओके, तो आज उन्हीं के लिए ये है. There was a certain man from Ramathaim, a Zophite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Zeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. He had 2 wives, one was called Hannah and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Year after year, this man went from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the 2 sons of Eli, were priests of the Lord. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave double portion, because he loved her, and the Lord had closed her womb. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Okay, हिंदी में पढ़ रही हूँ फटाफट. 1 शमूएल 1:6. एल्कना नामक एक व्यक्ति था. वह एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के समत्य मेसोपीम का निवासी था. एल्कना सूप परिवार का था. एल्कना यहोराम का पुत्र था. यहोराम एलीहू का पुत्र था. एलीहू तोहू का पुत्र था और तोहू सूप का पुत्र था, जो एफ्रेम के परिवार समूह से था. एल्कना की 2 पत्नियां थी. एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था. पनिन्ना के बच्चे थे, किंतु हन्ना के कोई बच्चा नहीं था. एल्कना हर वर्ष अपने नगर सम्मति मेसोपीम
को छोड़ देता था और शिलो नगर जाता था। एल्कना सर्वशक्तिमान यहोवा की उपासना शिलो में करता था और वह यहोवा को बलि भेंट करता था। शिलो वह स्थान था जहाँ होपनी और फिनियास यहोवा के याजक के रूप में सेवा करते थे। होपनी और फिनियास एली के पुत्र थे। जब कभी एल्कना अपनी बलि भेंट करता था, वह भेंट का एक अंश अपनी पत्नी पनीना को देता था। एल्कना भेंट का एक अंश पनीना के बच्चों को भी देता था। एल्कना भेंट का एक बराबर का अंश हन्ना को भी सदा दिया करता था। एल्कना यह तभी भी करता रहा जब यहोवा ने हन्ना को कोई संतान नहीं दी थी। एल्कना यह इसलिए करता था कि हन्ना उसकी वह पत्नी थी जिससे वह सच्चा प्रेम करता था। ओके, पनीना हन्ना को सदा खिन्नता और परेशानी का अनुभव कराती थी। पनीना यह इसलिए करती थी क्योंकि हन्ना कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा था? दुख हो रहा था उसको, हाँ, कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे 1 शमूएल 19:20। एक शमूएल 1 शमूएल वो 19वां अध्याय नाही, हाँ, एका ह्याच्यामध्येच 1 शमूएल 1:19-20। ओके, हम एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखेंगे। 12 पढ़ेंगे, 12 से 12 से हम 19-20 तक पढ़ेंगे। चलो कम ऑन, 12 से हम थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे। आएगा क्या? मज़ा आएगा आपको? फटाफट, हाँ, 19 फटाफट वाचायला घे कीर्ती। 12 ते परमेश्वरापुढे ती अशी करुणा भाकीत असता एली तिच्या मुखाकडे पाहत होता। हन्ना मनातल्या मनात बोलत होती, तिचे होठ हालत होते, पण तिचा शब्द ऐकू येत नव्हता। म्हणून एलीस वाटले की ही दारूच्या निशेत असावी। एली तिला म्हणाला, तू अशी कोठवर निशेत राहणार? तू ह्या आपल्या द्राक्षरसाच्या निशेतून मुक्त हो। हन्ना त्यास म्हणाली, माझे स्वामी, मी दुःखित हृदयाची स्त्री आहे। मी द्राक्षरसाचे किंवा दारूचे सेवन केलेले नाही। मी परमेश्वरासमोर मन मोकळे करून बोलत होते। मी आपली दासी, कोणी अधर्म स्त्री आहे असे समजू नका। मला चिंता व क्लेश मनस्वी झाल्यामुळे मी एवढा वेळ बोलत होते। तेव्हा एली तिला म्हणाला, तू सुखाने जा, इस्रायलच्या देवाकडे जे मागणे तू केले आहे ते तो देव। ती म्हणाली, या आपल्या दासीवर आपली कृपादृष्टी हो। मग त्या स्त्रीने परत जाऊन अन्न सेवन केले व यानंतर तिचा चेहरा उदास राहिला नाही। ती मंडळी अगदी पहाटे सुटून परमेश्वराला वंदन करून रामा येथे आपल्या घरी परत गेले। मग एल्कानाने आपल्या स्त्री जाणिले आणि परमेश्वराने तिची आठवण केली। या प्रकारे हन्ना गर्भवती झाली व दिवस पुरे होऊन तिला पुत्र झाला। हा परमेश्वराला मागितलेला असे म्हणून तिने त्याचे नाव शमूएल ठेवले। ठीक है, 12वां अध्याय क्या है लिखो। एज शी केप्ट ऑन प्रेइंग टू द लॉर्ड। ओके, अब वो कहाँ गई है? अब वो मंदिर में गई है। मंदिर में याजक उसे देखता है और क्या बोलता है, वो वहाँ से हम शुरू करेंगे। एज शी 1 सैमुअल 1:12-20 हम पढ़ रहे हैं। As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, how long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief.
Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him." She said, "May your servant find favor in your eyes." Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Early the next morning they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, "Because I asked the Lord for him." हालेलुया। देखो, मुझे अगर भागना है तो मैं पहले ही भाग सकती हूँ ना, फास्ट सिखा के, पर मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँ, चलेगा ना? देखो, अभी हन्ना ने बहुत देर तक प्रार्थना की। जिस समय हन्ना प्रार्थना कर रही थी, एली ने उसका मुख देखा। हन्ना अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे, किंतु कोई आवाज नहीं निकल रही थी। एली ने समझा कि हन्ना दाखमधु से मत्त है। एली ने हन्ना से कहा, तुम्हारे पास पीने को अत्याधिक था। अब समय है कि दाखमधु को दूर करो। हन्ना ने उत्तर दिया, मैंने दाखमधु या दाखरस नहीं पिया है। मैं बहुत अधिक परेशान हूँ। मैं यहोवा से प्रार्थना करके अपनी समस्याओं का निवेदन कर रही थी। मत सोचो कि मैं बुरी स्त्री हूँ। मैं इतने देर तक इसलिए प्रार्थना कर रही थी कि मुझे अनेक परेशानियाँ हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। एली ने उत्तर दिया, शांतिपूर्वक जाओ, इज़राइल का परमेश्वर तुम्हें वह दे जो तुमने मांगा है। हन्ना ने कहा, मुझे आशा है कि आप मुझसे प्रसन्न हैं। तब हन्ना गई और उसने कुछ खाया। वह अब दुखी नहीं थी। दूसरे दिन सवेरे एल्कना का परिवार उठा। उन्होंने परमेश्वर की उपासना की और वे अपने घर रामा को लौट गए। एल्कना ने अपने पत्नी हन्ना के साथ शारीरिक संबंध किया। यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना को याद रखा। हन्ना गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र हुआ। हन्ना ने उसका नाम शमूएल रखा। उसने कहा, इसका नाम शमूएल है क्योंकि मैं इसे यहोवा से मांगी हूँ। हालेलुया। देखो, एक दर्द था उसके अंदर और वो रो रही थी परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसके गर्भ को खोल दिया। कई बार डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं, भाई तुम्हारा ये खराब है, वो खराब है, ये फिलिपियन ट्यूब खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तुम्हारा वूम कभी ओपन नहीं हो सकता, तुम IVF करा लो, तुम ये करा लो, तुम वो करा लो। पर हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। यीशु जिंदा है। आमीन। डॉक्टर के ऊपर भी कौन है? यीशु है। तो आज भी अगर आप दिल से प्रार्थना करोगे यीशु के पास कि परमेश्वर मुझे बच्चा दो, तो परमेश्वर तुम्हें बच्चा देगा। आमीन। दिल से अगर कोई पुकार रहे हो, कोई चीज तुम्हें चाहिए और दिल से परमेश्वर के पास पुकार रहे हो कि परमेश्वर, कोई लोगों के लिए बच्चा हो सकता है, कई लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कई लोगों के लिए शादी हो सकती है, कई लोगों के लिए घर हो सकता है। दिल से पुकारो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर तुम्हें वो देगा। आमीन। मनुष्य नहीं करेगा पर परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। और वैसे ही उसका गर्भ खुल गया। एल्कना ने उसे प्रेम किया, उसका गर्भ खुल गया और उसे बच्चा हुआ। हालेलुया। और उसने एक शमूएल 2:1 हम पढ़ेंगे। उसने बाद में उसने एक प्रार्थना लिखी है, वहाँ पे वो कहती है कि परमेश्वर ने मेरे निंदा अपमान दूर किए। हालेलुया। चलो फटाफट, मैं जानबूझ के आपको ये सब दिखा रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे मैं कुछ भी बड़बड़ कर रही हूँ, एक्चुअली वचन में है। चलो 1 शमूएल 2:1। Then Hannah, 1 Samuel 2:1. Then Hannah prayed and said, my heart rejoices in the Lord. In my Lord, my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. मराठीमध्ये वाच. हन्नाने प्रार्थना केली ती, परमेश्वरा ठाई माझे हृदय उल्हासत आहे. परमेश्वराच्या ठाई माझे शृंग उन्नत झाले आहे. माझे मुख माझे शत्रू विरुद्ध उघडले आहे, कारण तू केलेल्या उद्धाराने मला आनंद होत आहे. परमेश्वरासारखा पवित्र कोणी नाही.
कारण तुझ्याशिवाय कोणीच नाहीये, आमच्या देवासारखं दुर्ग कोणी नाही. देखो यहाँ पे परमेश्वर को वो प्रार्थना करके बता रही है, बट इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, मैं आपको बताने वाली हूँ. मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. हन्ना धन्यवाद देती है. हन्ना ने कहा, यहोवा में मेरा हृदय प्रसन्न है, मैं अपने परमेश्वर में शक्तिमती अनुभव करती हूँ. मैं अपनी विजय से पूर्ण प्रसन्न हूँ और अपने शत्रुओं की हंसी उड़ाई हूँ. अपने शत्रुओं की हंसी उड़ाई हूँ. कितने आपके, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके बहुत सारे शत्रु हैं जिन्होंने आपका अपमान किया है, आपको बोला है आपके पीठ पीछे हंसे हैं, आपके पीठ पीछे गॉसिप किया है, स्लैंडर किया है, पीठ पीछे इतनी गंदी बातें की आपके विरुद्ध, इतना कुछ बोला है. कितने लोगों ने श्राप दिए हैं, कितने लोगों ने आपके ऊपर जादू टोना करके आपकी चीज़ें बंद करवाई है. पर आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आने वाले दिनों में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है. आपके शराब टूटने वाले हैं, आपके चाम, हेक्स, वेक्स, कर्सेस, इनकैंटेशंस, जादू टोना, तंत्र मंत्र, नकारात्मक शब्द सब टूटने वाले आपके जीवन से. और परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलने जा रहा है, जो दरवाजा कोई बाप किसी का बंद नहीं कर सकता. ना शैतान बंद कर सकता है, ना दुष्ट आत्मा, ना किसी मनुष्य वो दरवाजा आपके लिए बंद कर सकता है. परमेश्वर ऐसे दरवाजे आपके लिए खोलने जा रहा है. परमेश्वर आप बोल रहा है कि आपका अभी तक आपका घर बंद था, पर आप बहुत रोए हो, मैंने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब मैं आपका घर खोलने जा रहा हूँ. मैं आपके रास्तों को सीधा करने जा रहा हूँ, मैं आपके मार्गों को सीधा कर रहा हूँ. आपके दरवाजे जो अब तक बंद थे मैं खोल रहा हूँ उसे, और आपके दुश्मनों को मैं लज्जित या फज्जित करने वाला हूँ. और हन्ना ने कहा, मैं अपनी दुश्मनों की हंसी उड़ा रही हूँ. आने वाले दिनों में आप आपके दुश्मनों के ऊपर हंसने वाले हो जोर जोर से. आप विश्वास करो इस बात के. आपके दुश्मन ना आज आपको देखकर बोल रहे हैं यार इसका क्या होने वाला, उसका क्या होने वाला, पर मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आने वाले दिनों में द लास्ट लाफ विल बी योर्स. आखिरी अंतिम हंसी आपकी होने वाली है और आप आपके दुश्मनों के ऊपर हंसने वाले हो और वो शर्मिंदगी महसूस करने वाले हैं. इतनी शर्मिंदगी कि किसी के साथ आंख नहीं मिला सकते. और परमेश्वर उनकी जितनी भी गंदी चीजें उन्होंने की है ना, सारी गंदी चीजें उन्हीं के ऊपर मारने वाला है परमेश्वर. उनके श्राप, उनके नकारात्मक शब्द, उनके जादू टोना उन्हीं के ऊपर जाने वाले हैं. और जो चीजें उन्होंने आपके लिए प्लान की थी, आपको आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाया था, वो षड्यंत्र में वो खुद फंसने वाले हैं, उस जाल में वो खुद फंसने वाले हैं, उस खड्डे में वो खुद गिरने वाले हैं. हालेलुया. यू नो, हमान ने खंबा तय बना लिया था कि मोर्दकाई को उस लटकाने के लिए, पर कौन लटका? हमान खुद लटक गया. आपके दुश्मनों ने ऑलरेडी खंबा बना दिया है आपको लटकाने के लिए, पर परमेश्वर कह रहा है उस खंबे पर वही लटकने वाले हैं. उनके सारे श्राप, नकारात्मक शब्द, चाम, हेक्स, वेक्स, कर्सेस, इनकैंटेशन सारे उन्हीं के ऊपर रिटर्न बैक हो रहे हैं इसी वक्त. आई रिटर्न इट बैक टू द सेंटर इन जीसस नेम. अब बहुत सारी खुशखबरियाँ आपके जीवन में आने वाली है. परमेश्वर कह रहा है मैं आपके जीवन में दरवाज़ों को खोल रहा हूँ. आपके जीवन में आपका जीवन अब सफलता की ओर जाने वाला है. आपको अब कोई रोकने नहीं सकता. आपका उद्धार तय है. आपको कोई भी आपका उद्धार रोक नहीं सकता. आपका उद्धार तय है और आपको परमेश्वर के पीछे अभी आगे से चलना है. यू नो, हैना को जब बच्चा हुआ तो हैना ने वो बच्चे परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर अगर तूने मुझे बच्चा दिया तो मैं इस बच्चे को तेरे मंदिर में सेवक बनाऊंगी, वो तेरे मंदिर में काम करेगा. मैं आपको बोल रही हूँ आने वाले दिनों में जब परमेश्वर आपके लिए उद्धार का रास्ता बनाएगा, तब आपको भी परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के अधीन दे देना है. हालेलुया. आपको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है और बोलना है परमेश्वर जो तू चाहता है मेरे जीवन में होने दे. हालेलुया. आमीन. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा दरवाजा खोलने जा रहा है और ये दरवाजा कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता.
हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर इसे खोलने वाला है। और अभी भी मैं जब बोल रही हूँ तो आत्मा में चीजें हट रही है आपके जीवन से। हालेलुया। चीजें आपकी चीजें, आपको जो बंधन में रखा है ना, वो बंधन टूट रहा है आपके ऊपर। वो शैतानी वेदियां जो आपके खिलाफ खड़ी की गई है, वो शैतानी वेदियां जल रही है इस वक्त यीशु के नाम से। वो सारे शैतानी चीजें जो वो तांत्रिक मांत्रिक कर रहे हैं, वो सारी चीजें उन्हीं के ऊपर लौट रही है, वो आपके दुश्मनों के ऊपर जा रही है। और जिस खड्डे में वो आपको डालने वाले थे ना, बहुत सारे लोगों के पता है, इन्होंने ना टिकट निकाल के रखे थे। किसके पता है? मौत के टिकट। इतना जादू टोना करके कि उनकी मौत हो जाए, वैसे टिकट निकाल के रखे थे। मैं आपको आने वाले दिनों में बोलने वाली हूँ कि आप इनके मौत के समाचार सुनने वाले हो। क्यों? क्योंकि अपने ही गंदे चाल में परमेश्वर उनको डालने वाला है। उन्होंने आपके लिए टिकट निकाला था, परमेश्वर उन्हीं के ऊपर ला देने वाला है वो। और आप ये न्यूज़ बहुत सारी जगह से सुनने वाले हो, और ये होने वाला है, क्योंकि ये परमेश्वर के नज़र में जो उन्होंने किया है वो गलत है। समझा? आमेन। तो यहाँ से मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि आने वाले दिनों में ये भविष्यवाणी परमेश्वर की आ रही है। आपको छुटकारा मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। और जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। आपके बहुत दिन करीब है छुटकारे के, और आप परमानेंटली छुटकारा पाने वाले हो। परमानेंटली आप अंधेरे से उजाले में आने वाले हो। आपके ऊपर जो शासन चल रहा है अंधकार की शक्तियों का, वो शासन टूटने वाला है, और आप पूरी तरह से यीशु में आने वाले हो। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे हैं जो यीशु को अपना जीवन देंगे? बाहर आने के बाद आप अपना जीवन यीशु को देंगे? यस, आपको जीवन यीशु को देना है और यीशु के पीछे चलना है। आमेन। हालेलुया। तो चलो, आज मैंने ये भविष्यवाणी आ चुकी है, ओके, ये आपके जीवन में होने वाला है। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें भी एक मकसद से चुना है प्रभु, और आने वाले दिनों में हमें भी हमारा मकसद को प्रकट कर हमारे सामने ला, और हमें भी मदद कर सुसमाचार लोगों को देने के लिए प्रभु। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में तू गुड न्यूज़ हमें हमारे जीवन में लाने वाला है। वो गुड न्यूज़ आने दे प्रभु, और जब तक वो नहीं आती है तब तक हमें अनुग्रह दे आगे बढ़ने के लिए प्रभु। और ये गुड न्यूज़ आने वाली है, तूने बोला है तू करेगा। तू हमारे जो भी चीज़ें बंद है वो उसे खोल रहा है प्रभु, और हमारा विश्वास है कि तू हमारे हर एक व्यक्ति के द्वारा बड़े बड़े काम करवा के लेने वाला है, बड़े बड़े काम करने वाला है प्रभु, और पूरी दुनिया को तू बदलने वाला है प्रभु। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो भी आज वचन आया है प्रभु, ये वचन इनके अंदर जाने दे, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, और हर एक वचन इनके एक बीज के समान आने दे इनके हृदय में, जो 100 गुना फल लाए प्रभु। हर एक व्यक्ति यीशु के लिए 100 गुना फल लाए प्रभु, वचन पर चलने वाले व्यक्ति बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।